السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامک فاؤنڈیشن فار پیس اینڈ کمنل ہارمونی کی اور سے آن لائن تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس میں حال ہی میں خطۂ پیر پنجال کی عالمی اور ادبی معروف شخصیات کے انتقال پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ایک آن لائن تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جن میں خطۂ پیر پنجال کے مشہور عالم دین اور مولف مولانا فیض الوحید، ماہر تعلیم، شاعر اور ادیب جناب حسام الدین بیتاب، اور سابقہ MLC اور سرگرم سماجی کارکن جناب چودھری گلزار احمد، ماہر تعلیم اور سماجی کارکن محمد امین قمر کی خدمات کو بھی سراہا گیا ہے۔ اسی کے حوالے سے یہ رہی آج کی رپورٹ۔ پہلے ہم نے جو میسیج بھیجا ہے اس میں جو چیز ہے وہ لکھی گئی ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ موت کا ایسا سلسلہ رہا کہ جس نے ہم سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھین لیے، بڑی قداور شخصیات کہ جن کو بنانے میں شاید برسوں لگے تھے، تو اچانک وہ ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ ہمارے گلزار چودھری صاحب جو ہمارے خطہ پیر پنجال کی ایک بہت نامی گرامی شخصیت اور فارمر MLC تھے، وہ ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ اور اسی طرح سے ہمارے سرم کوٹ کے حسام الدین بیتاب صاحب، وہ اپنے میں ایک بہت بڑی شخصیت تھے، شاید ایسے لوگ جن کی ریپلیسمنٹ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور شاید آنے والا ایک بہت عرصہ لگ جائے گا ایسے لوگوں کو واپس لانے میں۔ تو اسی طرح مولانا فیض الوحید صاحب ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اوریٹر تھے ہمارے اسی ریجن کے، تو وہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے، اور ہم نے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر کو لوز کر دیا۔ کل کی ہی خبر جو آج سب کے پاس پہنچ چکی ہے کہ ہمارے امین قمر صاحب کہ جو ایک یقیناً ہمارے اس خطہ کے ایک بہت جانے مانے ایک عالم اور جانے مانے ایک اکیڈمیشین اور ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ایک سوشل ورکر تھے، تو انفارچونیٹلی کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ پہلے ہم خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کا ثواب ان تمام شخصیات کو ہم بھیجیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے سلسلہ آگے چل پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 2 منٹ کے لیے ہم اس میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ صدیق صاحب گوگل میٹ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر جوائن کریے آپ۔ صدیق صاحب گوگل میٹ ڈاؤن لوڈ کر کے نا پھر جوائن کریے۔ بسم صاحب آپ فائنل نے پڑھ لیا، اب آپ فائنل ان کا نام لے کر کے ان کا حساب سواب کر دیجیے۔ بسم اللہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک سواب جو ہے ہماری عظیم شخصیات جن کا تذکرہ ہوا ہے ان کے اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان کا نعم البدل نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ سارے خطے میں آپ اس وبائی بیماری سے ہم سب کو نجات دے، اور پھر ہم خیر حافظ سے یہ سلسلہ کاروبار چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ بہت اچھے اچھے لوگ ہمیں نصیب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو امین بہت دکھ ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں، اور بالخصوص ہمارے دیکھیے کل شام کو ہی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی، ہمارے سینئر ساتھی امین قمر صاحب پونچھ کے جو تھے، وہ بھی کل رحلت فرما گئے،
उससे पहले 2 दिन पहले चौधरी गुलजार साहब रजौरी की एक बड़ी कदावर शख्सियत रही है और अपने ज़माने की, और MLC भी रहे हैं, बड़े मुकर्रर बेहतरीन आलिम, बड़े अच्छे, उनका भी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और थोड़े ही दिन पहले हमारे सोनकोट के मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हसामुद्दीन बेताब साहब, एक बहुत बड़े उस्ताद, बड़े शायर, बड़े अदीब, और उनसे पहले ही थोड़े दिन पहले हमारे एक बहुत बड़े आलिम, एक बड़े मुफस्सर, एक बड़े मतलब एक बहुत बड़े आलिम दीन हमारे मौलाना फैजुल वहीद साहब वफात पा चुके थे। तो इन सब का हमें बहुत ज़्यादा अपनी बहुत अफसोस है, और हम ये अल्लाह ताला की एक मशीयत है, मर्जी है, हम सबको जाना है, कौन कब जाए, आगे जाए पीछे जाए मालूम नहीं, लेकिन ये है कि जब अपने करीब से उठकर कोई चला जाए तो उसका यकीनी तौर पर बहुत दुख होता है। और नई नस्ल के काफ़ी लोग जो है शायद उनको इनके खिदमात का या इनकी शख्सियात का या इनकी शख्सियात ये रही हैं उनका शायद इल्म हो या ना हो सकता है कुछ लोग जो उनके करीब हों उनके रहे हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी नस्ल के लोग जो है वो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन शख्सियात को जो है उन्हें देखा है, जाना है। तो बहरहाल हम यही उनके लिए दुआए मगफरत कर सकते हैं। और ये एक ऐसा दौर चल रहा है एक कोरोना के इस चक्कर में कि कोई मालूम नहीं कब कौन कहाँ इस वक्त हमें क्या खबर मिले। तो उसके लिए भी हम इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी मेरी गुजारिश यही है कि हम अपनी तमाम नमाज़ों में और उसके अलावा दुआ करें एक दूसरे की खैरियत के लिए, और ये कि अल्लाह हमको इस आज़माइश से निकाले और हमारी मदद करे और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। मैं तो यही कहूँगा, इस वक्त कोई न तकदीर का है, सिर्फ यही है कि अपने जो साथी चले गए, जो बिछड़ गए, उनको हमें याद करना है। तो हम समझते हैं कि अब मैं अलग-अलग बयान करूंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। बेताब साहब जो है वो जब मैं उस्ताद था किसी ज़माने में थोड़े दिनों के लिए, तो मेरे हेडमास्टर भी रहे। उस्ताद होने के अलावा हमने काम भी किया इकट्ठे, बहुत अनथक किस्म के आदमी थे। और अदब में तो उनका मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि अदब में उनकी क्या खिदमात रही हैं। वो एक सोशल वर्कर भी थे, एक समाजी कारकुन भी थे, और एक दर्द दिल रखने वाले शख्स थे सबके लिए। इसी तरह ये जो मैंने अपने फैजुल वहीद साहब से मेरा कुछ ज़्यादा था, लेकिन 2-4 बार जो भी मैंने उनसे मुलाकात की तो मैं बहुत ही उनसे मुतासर हुआ। और जब पहली बार मैं मिला तो मैंने उनको नाम बताया मस्जिद में जुमा के खुतबा के बाद, जब वो नमाज के बाद, तो मैंने उनको सलाम किया, रुका रहा मैं, तो कहने लगे मैं आपको जानता नहीं। तो जब मैंने नाम बताया तो मुझे गले लगा के छोड़ा नहीं, कहते आपने मुझसे मुतासिर, तो मैं तो आपसे मिलना चाहता था बहुत मुद्दत से। तो बहरहाल इस किस्म के कुछ यादें हैं। और अमीन कमर साहब से तो यह है कि बहुत पुरानी बात है, 67-68 की जब पहली बार मैंने उनको सुना तो मैं समझा कि ये शख्स जो है ये क्या है, शोला बयान। उसके अमीन कमर साहब की तकरीर से मुतासर था या फिर शमीम साहब की तकरीर से, शमीम अहमद शमीम, तो वो अंदाज जो था उनका, वो शोला बयानी। अब तो काफ़ी मुद्दत से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो बहरहाल ये जितनी शख्सियात हैं हमें इनका दुख है। और मैं जितने हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ बेताब साहब के साहबजादे बरकत साहब हैं, और अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं मेरे ख्याल में, और बाकी जितने हजरात हैं, इश्तियाक साहब हैं, सदीक साहब हैं सर फैमिली की तरफ से। जी कौन? मौलवी साहब की फैमिली की तरफ से सदीक साहब हैं, और चौधरी साहब गुलजार साहब की फैमिली से इश्तियाक भट्टी साहब हमारे साथ शामिल है सर इस वक्त। जी सबका इफ्तिखार साहब है, हाँ इश्तियाक साहब है, शमीम बांडे साहब हैं, जितने भी साहिबान हैं, मैं इस सबको यही गुजारिश करूंगा कि आप हमें सब एक दूसरे को, सबको, पूरी इंसानियत को, और अपने पूरे जितने इलाके के और पूरी रियासत के लोग हैं उनको याद रखें दुआओं में। इस वक्त बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, और बिल्कुल अल्लाह के सामने जो है गिड़गिड़ा के दुआएं मांगने का वक्त है, क्योंकि अभी ये हमारी मुसीबत बहुत से लोग ये समझते हैं कि टल गई है। मैं समझता हूँ कि अभी भी
बहुत ज़्यादा हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये भी समाज में अगर बता सके, अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में और जहाँ जहाँ पर बह के उनके ज़रिए एक पैगाम भेज सकें कि कभी भी हमें अपनी गॉड्स लोअर नहीं करने हैं, क्योंकि तकदीर के साथ तदबीर जो है वो भी ज़रूरी है, और हमें ये एहतियाती तदाबीर जो है ये ज़रूरी करनी है। और बस मैं यही गुजारिश मेरी, और मैं सब हजरात का शुक्रिया अदा करूँगा। बाकी आपके प्रिंसिपल साहब, आपने मुशर्रफ साहब, आगे जो है कार्रवाई आप जारी रखें। भी अगर कोई बोलना चाहेगा तो सुनना चाहेंगे कुछ। सदर कंडोलेंस मीटिंग जनाब अंजम साहब और बाकी नज़ीर कुरैशी साहब, बिस्मिल साहब और शफीक साहब, हमारे मेरे दोस्त इश्तियाक भट्टी साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। I am highly thankful to Mr. Professor provided me link at very near to the LC at village Deguar. I have listened everybody but very carefully. अंजम साहब के, बिस्मिल साहब ने जो दुआ की उसमें मैंने बहुत आमीन की है, अल्लाह अगर कबूल करे। मुझे बड़ा दुख है अपने ये जो हमारे 3-4 स्कॉलर्स जो थे वो इस दुनिया फानी से चले गए हैं। उसमें वहीदुद्दीन साहब हूँ, गुलजार साहब हूँ, या बेताब साहब हूँ, या हमारे अमीन कमर साहब हूँ। असल में बात ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल हुई और ऑलमोस्ट 90-80 के अराउंड हमारी लाइफ का यहाँ एंड हो ही जाता है। लेकिन इस छोटे से 60-70 साल में इस सफर में नाम कमा जाते हैं, और कुछ लोगों की किसी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, माली लिहाज से, किसी लिहाज से भी अगर किसी की मदद करते हैं या किसी को ठीक गाइड करते हैं, समाज सोसाइटी में जिंदा रहने का उन्हीं को हक था। आज मैं समझता हूँ कि ये जो 3-4 शख्सियतें हमसे चली गई है खिताए पीर पंजाल की, ये बड़े लॉन्ड लोग थे और इन्होंने समाज सोसाइटी को बहुत कुछ दिया, और दुनिया फानी से तो जाना है, ये तो कुदरत का एक फैसला है। लेकिन बहरहाल ये जो हालात जिनकी वजह से जैसे अंजम साहब ने बताया कि ये मौतें वाक़या हुई हैं, हम सब लोगों को SOP का बड़ा ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे के लिए खिताए पीर पंजाल नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड और जहाँ भी हमारे लोग मुस्लिम जो रहते हैं उनकी खैर वफियत के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये जो वबा है इसको हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अपनी वबा को जो ये फैल रही है इसको दूर करे और हम सब को हिम्मत के लिए। शाह साहब, आज आपने ये प्रोग्राम रखा है, ये मैं समझता हूँ कि आपका बड़ापन है। आपने चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप हम 5-10 साथियों को भी इकट्ठा कर लेते हैं और साथ में जो लोग इस दुनिया से उनको बयान करने का हमें भी थोड़ा, सारे लोग ज्वाइन नहीं करते लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं तो उनको भी इसका एहसास होता है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका और जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं हम सब, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला दुआओं से तकदीरें बदल देते हैं। वो भी तो हम सब इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला इन सब को जन्नत फिरदौस अता करे और हमें नेक काम करने के लिए तौफीक अता फरमाए, क्योंकि देर से या दूरी से या अरसे के बाद वो इस वक्त में, इस दौर में, इस लम्हात में हम सब से गुजरना है। तो बहरहाल हम दुआ गो हैं इन सब हजरात के लिए जिनके नाम अंजुम साहब ने लिए, मैंने भी लिए और बिस्मिल साहब ने डिटेल से बात की, रशीद साहब ने इनके जिंदगी के हालात पर जो है रोशनी डाली है। तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम मेरे मोहतरम उस्ताद जनाब आमीन अंजुम साहब, रिटायर्ड IGP, जो हमारे प्रोग्राम के आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, खुर्शीद बिस्मिल साहब और दूसरे पैनलिस्ट की खिदमत में मेरा सलाम है। मैं शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पीर पंजाल खिता से हमारे जो नामवर शख्सियात अभी हाल ही में कुछ दिनों में
इस दार फानी को कूच कर गई। उनमें चौधरी गुलजार साहब, मौलाना फैसल वहीद साहब, आमीन कमर साहब और उस्तादों के उस्ताद जनाब हसामुद्दीन बेताब साहब। तो मैं ये गुजारिश करता चलूं कि मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि टपक है शमा आंसू भरन के परवाने की आंखों में, सरापा दर्द हूं हसरत भरी है दास्तां मेरी। तो हमारा 47 के बाद जो ये खिता हमारा 2 टुकड़े हो गए इसके, तो ये बहुत कम लोग थे जो लिटरेरी लोग थे जिन्होंने समाज की खिदमत की है। हमारी शनाख्त बनाने में इनका बड़ा रोल है। तो चौधरी गुलजार साहब चूंकि मेरे फादर इन लॉ थे, तो मेरा करीबी उनसे ताल्लुक था। तो मैं चौधरी गुलजार साहब के बारे में ये गुजारिश करता चलूं कि वो एक बेबाक लीडर थे, एक मजहबी रहनुमा थे, एक आला पाए के मुकर्रर थे और एक सेकुलर शख्सियत थे, जिनके वालिद मोहतरम जनाब चौधरी दीवान अली साहब ने जब ये सोरिश थी तो बहुत सारे हिंदू बरादरी के लोगों को बचाया नहीं, बल्कि उनको ये कहा है कि आपको इस वक्त अपना किसी मजहब तब्दील करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं पूरी आपको डिफेंस दूंगा और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं चौधरी गुलजार साहब के बारे में 1-2 चीजें जरूर अर्ज करूंगा कि दिल्ली में एक बार मैं उनके साथ था और रामचंद्र विकल जी जो यूपी के साहब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने गाजियाबाद में राम जी के बारे में एक प्रोग्राम रखा था। तो मैंने सोचा कि राम जी पे चौधरी साहब क्या बोलेंगे। तो आप यकीन जानिए कि चौधरी साहब ने राम जी के बारे में 1 घंटा तकरीर की और वह हजारों लोग फूल मालाएं लेकर चौधरी गुलजार साहब के गले में डाली। चौधरी गुलजार साहब हमारे सरदार गुरुद्वारे में जब गुरुपुरब में बोलते थे तो ये लगता था कि जैसे इनको यही नॉलेज है। वो पर्शियन के, मौलाना रूम के और अल्लामा इकबाल के हाफिज थे और मौलाना रूम को और मियां मोहम्मद साहब का कलाम खूबसूरती से खूबसूरत आवाज में उसका रिसाइट करते थे। जहां तक मौलाना फैसल वहीद साहब का ताल्लुक है, तो मौलाना फैसल वहीद साहब का मैं ये गुजारिश करते चलूं, अगर मेरे किसी जम्मू के किसी भाई को बुरा ना लगे, तो जम्मू की आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले अंजुम साहब को अच्छी तरह वाकिफ है कि जम्मू में तालीम के लिहाज से जो हमारी गुजर बरादरी जम्मू में रहती है, कठुआ में रहती है, सांबा में रहती है, तो वो एक मुर्गा भी ज़बह करने के से कासर थे। 6 कलमे भी शायद उनको पूरे ना आते हो, नमाज भी पढ़ना नहीं आती हो। आज मौलाना फैसल वहीद साहब की कंट्रीब्यूशन से जम्मू में आपको तमाम मुसलमान चाहे वो मलिक हों, गुजर बरादरी से हों, दूसरे लोग हों, उनके घर में हाफिज मिलेंगे। तो ये मौलाना फैसल वहीद साहब का एक, जैसे अंजुम साहब ने फरमाया था कि वो उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत मुतअस्सिर हूँ। तो मैं एक बात ये कहता चलूं, जैसे हमारे आमीन कमर साहब थे, वो गोजरी के राइटर थे, अच्छे उस्ताद थे। और मैं यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे सुनकोट में, पुंछ में, मेंढर में और पीर पंजाब खुसूसन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम जो ऑफिसर लोग बने हैं, जो अच्छे लेक्चरर हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, IAS से, ये उस्तादों की जूतियों के सदके में बने हैं। यहाँ ये जो उस्ताद लोग हमारे रहे हैं, इन्होंने बगैर किसी लालच के जो लोगों की तरबियत की और उनको पढ़ाया है, तो वो लोग आपको ऑफिसर की सूरत में आप नजर आते हैं। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है और तीसरा कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पुंछ कॉलेज का है। अब चौथा नाम बेताब साहब जो है हमारे उस्तादों के उस्ताद। तो ये जो चंद उस्ताद हजरात थे, जिनमें अंजुम साहब भी शामिल हैं, जो कि बाद में वकील होने के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में गए और पुलिस डिपार्टमेंट में इन्होंने अच्छा नाम कमाया। ये भी इकबाल याद के और लिटरेरी हम भी इनको एक आइकॉन मानते हैं और हमें फख्र है कि अंजुम साहब और मसूद चौधरी साहब जैसे लोग हमारे खिताई पीर पंजाल के रहने वाले हैं। तो मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इन शख्सियात के बारे में कुछ कह सकें। और जहाँ नज़ीर कुरैशी साहब ने, खुर्शीद बिस्मिल साहब ने, अंजुम साहब ने, वहाँ मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए लाभकशाई करना क्या है। अलबत्ता मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर मुशर्रफ साहब का, जिन्होंने ये मौका बख्शा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? तो हमने क्या बोलना है, अलबत्ता 1-2 लफ्ज में भी कह दूं, जहाँ तक बेताब साहब का ताल्लुक है तो वो तो आप सबके भी उस्ताद हैं और मेरे भी उस्ताद रहे हैं, तो उनकी कदर तो सब दुनिया को है। उनका बेहद हमें अफसोस भी है। तो
रहा सवाल बाकी लोगों का, जहाँ पे बेताब साहब के साथ तो हमारा पड़ोस का हर चीज का वो एक रहा है। उसके बाद गुलजार साहब के साथ भी मेरा तल्लुकात जो है वो 78 में वो बने थे, जब मैं गुजर नगर एक मकान बनाने के सिलसिले में गया था, वहां वो रहा करते थे। तो बड़े प्यारे इंसान थे वो, और बड़ा, हालांकि मेरी और उनकी एज में बड़ा फर्क था, लेकिन वो बड़ा करते थे। हमारी हर दूसरे तीसरे दिन हाँ आपस में मुलाकात हो जाती थी। तो बाकी रहा मौलवी साहब के बारे में, फजल वहीद साहब के बारे में, तो शायद मेरी उनके साथ जान पहचान नहीं रही। तो अब अंजुम साहब और खर्शीद बिस्मिल साहब, मारूफ साहब शायद बोल चुके हैं, नज़ीर कुरैशी साहब बोल चुके हैं। तो इन जो कुछ बोला है तो मैं उस सब चीजों की तायद करता हूं, और इनके सामने क्या बोलूं मैं, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि सबको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम मिले और इनके लायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेंटर से ना मारूफ मनाज साहब है, उनको थोड़ा मौका दें। मारूफ मनाज साहब। हाँ, मारूफ साहब को मौका दे के मुशर्रफ साहब, ये अपने बरकत साहब जो है इनको उसके बाद बोलने का टाइम दीजिए। और बरकत आप सर ये थोड़ा सा, सर आप जरा, आप अंजुम साहब काइंडली आप इसको आगे चलाइएगा, जरा मेरे नेटवर्क में इशू हो गया थोड़ा, कोई वो बात सिग्नल डाउन हो। चलिए मारूफ साहब पहले आप। हाँ, इस महफिल में हमारे बड़े बुजुर्गों में हैं नज़ीर कुरैशी साहब, बाकी जितने मेरे मुअज़्ज़िन हैं, मैं उन सब का थोड़ा कैमरा ठीक एडजस्ट करें, कैमरा एडजस्ट आपका फेस नहीं आ रहा है। अब बरकत ठीक है, कैमरा एडजस्ट। हाँ जी अब ठीक है जनाब। जी अब जी ठीक है। जी बरकत साहब ठीक है। तो और ओवरऑल मैं शुक्रगुजार हूँ मुशर्रफ शाह साहब का कि जिन्होंने इस ताज़ीती महफिल का इनकाद किया है। तो ये आज मेरे जज्बात इस कदर मुंतशिर हैं कि मैं शायद कोई यकजा होकर कुछ बात नहीं कर सकूं। अलबत्ता इस वक्त जो ये बड़ी अहम शख्सियात हमारे दरमियान से रुखसत हो चुकी हैं, जिनमें मौलाना फैजुल वहीद साहब का जिक्र करना, मैं उनको पर्सनली मिला नहीं हूँ, अलबत्ता उनकी बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारी बातें जो है वो सुनी है। चौधरी गुलजार, अमीन कमर साहब, ये हमारे इस इलाके की बड़ी अहम शख्सियात थी जो आज हमसे रुखसत हो चुकी हैं। तो मुझे मेरे घर में ही एक इंस्टीट्यूशन था जो जिस ने मेरी परवरिश की है। एक बाप होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन उस्ताद रहे हैं, चाहे वो दीनी मालूमात, हमने तमाम जितना कुरान है वो पुराने वक्तों में चूल्हे हुआ करते थे, अब ये गैसों का ज़माना आ गया है, वो टीवियों का ज़माना आ गया है। तो वो चूल्हे के आगे बैठ के हमने तमाम नबियों के किस्से, कुरान जो सारा हमारे अंदर मुंतकिल बेताब साहब ने चूल्हे के आगे बैठ के किया है। तो उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाब इस सेंस में की कि अमीन अंजम साहब जैसे आला पाई की शख्सियात उनकी हाथों में वो पले बड़े हुए। बहुत सारे यहाँ नज़ीर कुरैशी साहब हैं, दोनों कुरैशी साहिबान, यहाँ केडी मैनी साहब हैं, बहुत सारे ऐसे, ये जितने भी हैं, ये हमें इस बात का फ़ख्र है कि ये हमारे वालिद मोहतरम की पैदावार है। उन्होंने इनकी नशो नुमा की है, इनको इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं। तो मैं बड़ा छोटा सा बंदा हूँ, पुलिस में भर्ती हो गया, अदब से थोड़ी दूरी हो गई। अलबत्ता उनकी जो परवरिश थी उसने मुझे एक बेहतरीन इंसान की सूरत में मुझे एज ए पुलिस ऑफिसर जहाँ भी मैंने नौकरी की है, तो वो उनकी बताए हुए मिसली राह पे चल के एक अच्छी बाइज़्ज़त तरीके की नौकरी की है। तो मैं तमाम हजरात का मशकूर हूँ। शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, यहाँ बड़े बड़े शख्सियात बैठी हैं, उनके सामने लब कशाई करना
मैं कर नहीं सकता हूँ। अलबत्ता अक्सर औकात जो बड़े प्यारे शागिर्द थे उनके, जिनका वो जिक्र अक्सर किया करते थे, उनमें अमीन साहब का नाम सरफरिश्त है। क़यूम साहब के साथ भी उनको बड़ा लगाव था, उनकी वो बचपन की बातें स्कूल में किस तरह लाते थे, क्या करते थे, अक्सर औकात वो जिक्र करते थे। नज़ीर कुरैशी साहब हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कभी कभी जलन सी महसूस होती थी कि हम उनकी औलाद हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो अपने शागिर्द हजरात को बहुत प्यार और मान देते। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत शुक्रिया बरकत साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मुझे जहाँ तक इल्म है, मैं जब पिछली मुलाकात मेरी हुई थी, बेताब साहब किसी किताब का जिक्र करते थे जो वो पब्लिश करवाना चाहते थे। तो मुझे ये मालूम नहीं कि पिछले वो हो गई थी पब्लिश या नहीं। नहीं सर, वो तैयार कर चुके हैं, उसमें सारा कुछ वो एडिटिंग वगैरह हो चुकी है, किताबत वो के लिए है। तो वो इंशाल्लाह जी मेरी गुजारिश ये है कि उसको आप पब्लिश करवाइए। उस सिलसिले में हमारे खुर्शीद बिस्मिल साहब हैं, इनकी थोड़ी, क्योंकि ये अदीब हैं, इनकी भी थोड़ी रहबरी ले लीजिए। और अगर किसी तरह की कोई खिदमत हमारी ज़रूरत है, जिस तरीके से भी हो आप महसूस करते हैं, तो हमें भी बताइए। वो किताब वो चाहते थे उसको पब्लिश कराना, मुझे एक बार जिक्र किया था, तो मैंने इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी इस किताब की अशात के लिए जनाब, वो मेरी जिम्मेदारी करके गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस आदत से जरूर बहरामंद होना चाहता हूँ। तो जहाँ भी कहीं रहबरी की जरूरत पड़ेगी जनाब, तो आप लोग ही हैं, आपसे ही हम राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। कुरैशी साहब से, नज़ीर कुरैशी साहब हुए या खुर्शीद बिस्मिल साहब से जरूरी उसके बारे में कुछ एक दो सफ़ा जात जो हैं उनका जरूर उनके तासुरात दीजिए उससे, उसको पब्लिश करने से पहले। बिल्कुल।